नमस्कार। मैं फिर से थोड़ा सा अपडेट देने के लिए वापस आया हूँ फेसबुक लाइव पे कोरोना के बारे में बताने के लिए। तो दो बातें हैं। तो पहली बात है कि हम लोग कोविड पे फिर से अमेरिकन और यूरोपियन कार्डियोलॉजिस्ट के साथ जुड़ेंगे वेबिनार में बुधवार को 6 मई को। इसकी डिटेल्स मैं भेज दूंगा बाद में। आज की तारीख में जो सिचुएशन है वो आप टेलीविजन पे तो देख ही रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ WHO क्या कह रहा है। 33 लाख पेशेंट संक्रमित, 23,000 डेथ, यानी 34 लाख और 24,000, विच इज ए ह्यूज नंबर। और अमेरिका में अभी भी स्पीड पे चालू है। 11 लाख केसेस अफेक्टेड, 11 लाख इन्फेक्शन। स्पेन 2,42,000, 64,000 डेथ अमेरिका में। तो हम लोग उस दिन समझ रहे थे अमेरिकन का डॉक्टर्स के साथ, जब हम लोग ने ये वेबिनार किया कि why America is affected so much. So the question is, should people with hypertension, which does seem... He's a topmost cardiologist from New York, Mount Sinai Hospital, Dr. Greg Stone. In fact, none of the doctors from USA can actually answer this question, why America is so badly affected. So we cannot go into details because we don't have the answer. So coming to UK, 1,77,000, which is, you see, there's huge difference. 11 लाख अमेरिका और उसके आसपास कोई कंट्री में इतना इन्फेक्शन नहीं हुआ है। बाकी सब ये 2.5 लाख जरूर स्पेन पहुंच गया है, बट इन्फेक्शन वाइज, so we don't know why US is so much badly affected. Is it again a China policy? I don't know. Nobody knows it. इंडिया 35,000 और करीब 1,200 डेथ। So तो चाइना का मकसद अमेरिका था क्या? ये अपने आप हो गया? कैसे हुआ? Maximum number of world death as well as maximum number of patient infected is America, and America is thinking of removing the lockdown. I was talking to my friend in Canada, and Canada is very safe. Let us see the pictures of Canada. Canada के कितने cases हैं? Let me find out, because Canada में कह रहे हैं lockdown में पूरा नहीं है, and people are enjoying life. Although partial lockdown तो सब जगह है, the whole world is partially locked down. So I cannot see Canada here, but maybe it is too low. ज़्यादा number of cases नहीं है. Despite being a close country to Americas, Canada, I think I might have missed it. Doesn't matter. लेकिन कहने का मतलब है कि the whole world is affected. आज की जो important बात है, the ICMR study has COVID-19 strain evolved since it was first reported in India. कहने का मतलब म्यूटेशन तो नहीं हुआ। अगर म्यूटेशन हो गया है, after the lockdown, ICMR plans to ask all states and UT to send positive COVID-19 to study the genetic diversity of the virus, which help India prepare better. अगर म्यूटेशन किसी भी वायरस का होने लगता है तो उसके लिए वैक्सीन जो बनती है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती. This is the problem. So we are trying to find out. ICMR is trying to find out, which is Apex Health Research Body. The plan is to collect the positive samples across the country and understand the evolution of virus. This is a senior scientist told, understanding evolution. So evidence of different strains. So all these studies are important for the help of the learning, and also coming on to the remdesivir, जो कि एक एंटीवायरल मेडिसिन है. इसके बारे में मैंने कल रिपोर्ट दिया था कि it can be useful, and there are 2 reports, one from China and one from USA. Both have little contradictory, लेकिन it has shown to be useful, at least in some studies. So it is an antiviral medicine and which will be used, and Indian pharma companies are very keen that जो इसका पेटेंट लगा हुआ उसको खत्म किया जाए, and they can start in India. Because you see, जब COVID-19 का पेशेंट होता है तो COVID-19 के पेशेंट को इलाज करना ही पड़ता है, और क्योंकि कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो कि रामबाण की तरह साबित हो. कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो टोटली इसको फायदा करे. हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से फायदा हुआ है, एंटीवायरल मेडिसिन से फायदा हुआ है, लेकिन जब पेशेंट बहुत सिक हो जाता है तो प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है, उससे भी फायदा हुआ है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशनल है. बाकी दवाई वेंटिलेटर दिए जाते हैं. वेंटिलेटर के बारे में एक बताना चाह रहा था आपको. There is a very important video which has come from European Society of Cardiology. Non-invasive ventilation. In Hanover, we prefer high-flow oxygen therapy. The patients are normally only hypoxemic. The hypercapnia is a very rare feature.
intensive care admittance. A German doctor speaking about intubation how the ventilation can be very useful. 20% of the COVID patients have, I would say, signs of myocarditis. For the recommended protective strategies, so we use FP2 masks, classes for this. Then it is a safe procedure, and we did not see any staph infection, any nosocomial staph infection by the bronchoscopies who were available for tracheostomy. So we do early tracheostomy, and our experience with this is very good. That's fantastic information. Thank you very much, Professor Welter. This was really truly interesting and very important. मैं आपको एक थोड़ा सा PowerPoint presentation दिखाना चाह रहा हूँ in relation to mask. So thank you once again for being available. Thank you, Professor Achenbach. It's been a pleasure really to have you. I would also like to remind you that we have much more information on our dedicated website, scardio.org/COVID, and I would like to thank you all for your attention. This was the webinar which we did. This was the webinar which we did with American cardiologist. That was 20th of April. So I was talking about the mask usage, and we all know कि मास्क दो तरह के होते हैं, लेकिन ये करीब 26 मार्च का एक वीडियो में दिखाना चाहता हूं आपको. जब this is 26 March, I was on TV, then at that time everybody was not supposed to wear a mask when he is outside home. तो ये वीडियो देखिए अगर आप देखना पसंद करेंगे. सोशल डिस्टेंसिंग, घर से बाहर ना निकले, लक्ष्मण रेखा अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी बता चुके हैं. इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं कहना चाहूंगा, मास्क फॉर एवरीबॉडी. सोशल डिस्टेंसिंग, घर से बाहर ना निकले, लक्ष्मण रेखा अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी बता चुके हैं. इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं कहना चाहूंगा, मास्क फॉर एवरीबॉडी हु इज गोइंग आउट. अभी WHO गाइडलाइन में कल देखा था उसमें कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एसिम्प्टोमेटिक कैरियर कैन आल्सो. तो 26 मार्च की टेलीविजन प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मास्क सबको पहनना चाहिए, और ये 29 मार्च का एक प्रोग्राम है जब मैंने कहा था, मैंने सोचा था कि समय नहीं है, जगह नहीं है, सोने की उनको जाना है. बसेस हमारे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, बॉर्डर पे खड़े हैं, जो अधिकारी हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो वर्कर हैं, उनसे कहा जाए कि जितने भी लोग हैं, आइदर मास्क और रुमाल और अंगोछा, तो हम इनको रोक पाएंगे. 80% 90% लोगों को, बाकी लोगों को संक्रमण करने से रोक पाएंगे. So these were two videos which I wanted to show again, highlight that 26 March and 29th March, पूरा अप्रैल निकल चुका है, अब तो मई आ गया है. उस समय लोगों का ध्यान इस बात पे नहीं था कि सबको मास्क बाहर पहनना चाहिए या रुमाल लगाना चाहिए या अंगोछा लगाना चाहिए. अप्रैल के फर्स्ट वीक में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही. तो मुझे बड़ी खुशी है कि जैसे कि लॉकडाउन की बात है, मैंने सोचा कि कल 2 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द कंटेनिंग द वायरस. जैसे मैंने मास्क कहा था, रुमाल या अंगोछा, तो अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसको फाइनली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में कहा कि गमछा पहनिए, घर से बाहर बिना फेस कवर करे ना निकले. सो दिस इज जस्ट अ चांस दैट वट एवर आई वॉज थिंकिंग वॉज टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट, एंड वी होप दैट वी विल बी फ्री ऑफ दिस डिजीज. दवाई अभी अचूक बाढ़ अभी आना बाकी है, आएगा, जल्दी आएगा. ऐसी दवाई हो जैसे एंटीबायोटिक खाई और इन्फेक्शन ठीक हो गया, वैसा कोई भी दवा अभी नहीं है. एंटीवायरल मेडिसिन के बारे में भी जांच चल रही है. वुहान ने कई ट्रायल किए, इटली ने कई ट्रायल किए, अमेरिका भी ट्रायल कर रहा है. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी एक दवा है, यूजफुल है, लेकिन कोई भी अभी 100% श्योरिटी वाली दवा नहीं है जिससे कि ये कह दे जो मोर्टेलिटी 15% की डेथ होने की या 10% लोगों की डेथ हो जाती है या डेथ हो रही है, उसको रोका जाए. भगवान के हाथ में है. वी हैव टू वेट एंड वॉच. Be careful, take care, keep sanitizing your hands all the time. This is my message every day. Thank you very much, Dr. Vivek Gupta from Apollo Hospital on 1st of May at 11 p.m. Thank you. Bye-bye.